Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bari, Hari Hari. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरे कृष्णा। बहुत ही हृदयपूर्वक प्रसन्नता हो रही आप सब भक्तों को मिलके, क्योंकि इस सोसाइटी के साथ हमारा ये जो है, इस सोसाइटी के भक्त लोग इस सत्संग का आयोजन बहुत सालों से करते हैं। इसके पहले भी यहाँ पर भागवत कथा हो चुकी है, भगवत गीता का कोर्स हो चुका है, और भी बहुत सारे संत महात्माएं यहाँ पर आए और आकर उन्होंने नाना प्रकार का प्रोग्राम का आयोजन किया है। मुझे याद है मैं 8-10 साल पहले भी यहाँ पर एक प्रोग्राम में आया था, इसी जगह पर यहाँ पर आया था। बहुत सुंदर यहाँ पे मंच लगा हुआ था, बहुत सुंदर कथा हो रही थी। तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप सब भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए, खास करके सत्संग के लिए आप सब लोग उत्साहित हैं। वास्तव में भक्तों, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल सत्संग ही होना चाहिए। संसार में हम लोग देखते हैं कि भौतिक कार्यकलाप के लिए लोग, हरे कृष्णा, भौतिक कार्यकलाप के लिए लोग नाना प्रकार का प्रयास करते हैं और बहुत खर्चा करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एक फिल्म बनानी होती है तो कितना खर्चा होता है, सीरियल बनानी होती है कितना खर्चा होता है, शादी विवाहों में लोग हजारों रुपयों का खर्चा करते हैं, पार्टियों में, बर्थडे इत्यादि फेस्टिवलों में लाखों रुपया का लोग खर्चा करते हैं। लेकिन एक भक्त जो होता है ना, एक भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा में और भगवान के अभिषेक में हजारों लाखों रुपए का खर्चा करता है। भक्त में और भौतिकतावादी व्यक्ति में इतना ही अंतर है। भौतिकतावादी व्यक्ति संसार में, सांसारिक कार्यकलापों में हजारों रुपया खर्चा करते हैं, और भक्त है ठाकुर जी के चरणों में, इसी संपत्ति को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं। वास्तव में हमारा बहुत से बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अगर हमारी संपत्ति ऐसे इस जन्म हमारे वंश में हमारे माता पिता इत्यादि, उनके माता पिता ने, हमने पता नहीं कौन से कर्म करके संपत्ति को इकट्ठा किया है। एक तो कर्म का चक्र, और बाद में चक्र के ऊपर चक्र, वापिस इसी संपत्ति को वापिस भौतिक जगत में लगाते हैं, तो कर्म के ऊपर कर्म फल लग जाता है, और जीव जो है नाना प्रकार की व्याधियों में फंस जाता है। भक्तों, श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हमारे मनुष्य जीवन को सफल करना है, हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। हमें बहुत ही बड़ी प्रसन्नता हुई आप सब भक्तों के साथ, क्योंकि ये जो हम अभिषेक करते हैं, कभी कभी लोग शिव जी के लिए अभिषेक करते हैं, है ना। शिव जी के नाना प्रकार के अभिषेक हैं। जैन धर्म में देखते हैं, जैन धर्म की भी ये प्रथा है कि वहां पर भी अभिषेक किया जाता है, जैन धर्म में भी। भगवान का जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी उत्सव पर लोग घरों में, अपने अपने घरों में गोपाल जी का पंचामृत से नाना प्रकार से अभिषेक करते हैं। ये अभिषेक करने की जो प्रथा है वर्षों से चली आ रही है। ये अभिषेक करने से, अगर हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं संपूर्ण रूप से ये अभिषेक पूर्ण करने वाला है। प्राय संसार में, भौतिक जगत में लोग अभिषेक करते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए,
और एक भक्त अभिषेक करता है भगवान की सेवा के लिए। एक भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा के लिए अभिषेक करते हैं। तो भक्त में और भौतिकतावादी व्यक्ति में इतना अंतर है। भक्त जो होता है भगवान के लिए कार्य करता है, और भक्त की इच्छा होती है कि अगर हम अभिषेक करेंगे तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल सत्य वस्तु है। अगर कोई व्यक्ति अभिषेक करता है, आके पंचामृत लिया और भगवान के चरणों में अर्पित किया, अगर कोई व्यक्ति अभिषेक करता है, अगर कोई व्यक्ति अभिषेक का दूर से दर्शन करता है, और अगर कोई व्यक्ति अभिषेक में आकर केवल बैठता भी है तो भी भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ये अभिषेक में इतना प्रभाव है, भगवान का धाम निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैदिक धर्म की ये प्रथा है, वैदिक परंपरा है। भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में उपस्थित थे, गोकुल में, वृंदावन में, तो वहां पर भी भगवान का स्वयं साक्षात भगवान का जो मनुष्य शरीर में जब भगवान प्रकट हुए थे और लीलाएं कर रहे थे, उसी समय पर भी भगवान का इसी प्रकार से अभिषेक किया जाता था। अभिषेक करने की ये जो वैदिक प्रथा है वो वर्षों से चली आ रही है। देवराज इंद्र ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को गोविंद नाम से पुकारा था, और भगवान का गोविंद नाम कहते हुए भगवान का सुंदर रूप से इंद्र ने अभिषेक किया था। आप सब लोग कथा जानते हैं कि इंद्र ने बारिश प्रदान किया था, तो भगवान ने गोवर्धन धारण करके पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा तो कर ली, लेकिन इंद्र जो था बहुत डरा हुआ था कि मैंने ब्रजवासियों को बहुत कष्ट दिया, यहाँ पर तो साक्षात भगवान है बालक के रूप में, वो मुझे निश्चित रूप से दंडित करेंगे। इंद्र हमेशा विचार करता था, अब मैं माफ़ी मांगने के लिए मैं क्या करूं। अपने गुरुजी के पास गया कि हे गुरुजी, मैंने ग्वाल बालों के प्रति, भगवान के प्रति मैंने अपराध कर दिया है, ब्रजवासियों के प्रति अज्ञान अवस्था में। तो इस अपराध से बचने के लिए अगर कृष्ण मुझे माफ नहीं करेंगे तो स्वाभाविक मैं कैसे रहूंगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत गुस्से में है भगवान, तो उनको शांत कैसे करूं, भगवान को शांत कैसे करें। तो देवराज इंद्र जो था गुरुजी से कहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि कृष्ण को अगर शांत करना है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ, गाय और ब्राह्मण जो है भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण को गाय और ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण, भगवान गाय की सेवा के लिए चप्पल भी नहीं पहनते और ब्राह्मणों की सेवा के लिए भी नहीं पहनते, कभी बिना चप्पल छोड़ के भागते हैं भगवान गाय ब्राह्मणों की सेवा के लिए, भगवान को प्रिय है। तो गुरुजी ने कहा इंद्र से कि इंद्र, तुम शूरभी गाय को, स्वर्ग की जो गाय हैं, गायों को आगे करते हुए चलो, आप गायों को आगे लो, आप पीछे पीछे चलो और भगवान का सुंदर रूप से अभिषेक करो। जब आप अभिषेक करोगे आगे गाय रहेगी और गोविंद नाम से उनको पुकारो और दूर से उनका अभिषेक करना शुरू कर दो फूलों से, जैसे यहाँ पर हम लोग ने किया अभिषेक। दूर से इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, गायों को आगे किया था, पीछे पीछे इंद्र था, प्रणाम किया और भगवान से स्तुति करते हुए, गोविंद नाम से पुकारते हुए, दूर से फूल वगैरह भगवान के ऊपर फेंकते हुए भगवान का सुंदर रूप से अभिषेक किया था। और जैसे इंद्र के भाव को देखा, भगवान तुरंत ही शांत हो गए थे। गौरांग महाप्रभु की। कहने का तात्पर्य है, भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो अगर हम इस प्रकार से अभिषेक का आयोजन करते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और जो हमारी इच्छा की पूर्ति है वो तो फ्री में गिफ्ट में मिलता है ना। हम कुछ मोबाइल लेने जाते हैं तो छोटा चीज़ फ्री में मिलती है। आजकल कैसे आपको ये छोटा सा मेमोरी कार्ड फ्री में मिलेगा आपको, आप मोबाइल लोगे तो, है ना। मेमोरी कार्ड फ्री में आ जाता है, बड़ा मोबाइल ले लेते हैं, बहुत सारे स्क्रीन निकालते हैं। तो क्या मेमोरी कार्ड के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं? मोबाइल खरीद रहे हैं तो मेमोरी कार्ड मिल रहा है फ्री में। तो वैसे ही
क्या हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अभिषेक करने आए हैं क्या? नहीं, हम तो भगवान की संतुष्टि के लिए आए हैं। लेकिन जब भगवान की संतुष्टि करते हैं तो फ्री में हमें हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो अभिषेक, एक तो ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का अभिषेक, तीसरा ठाकुर जी, चौथा भक्तों का समाज, सोसाइटी में सारे भक्त लोग, और पांचवा कार्तिक महीना। देखिए ये योग कितना ज्यादा योग है, ये इसको योग कहते हैं। केवल अभिषेक करते हैं तो भी इतना फल है, लेकिन तो ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। ब्राह्मण भक्त लोग उपस्थित थे, धोती कुर्ता पहन के अभिषेक करा रहे, वो भी ठीक है। तो भक्त लोग, यहाँ पे तो कथा कीर्तन हुई अनेकों बार, यहाँ तो गणेश जी बैठते हैं इस सोसाइटी में, तो धार्मिक जगह है, यहाँ पे पवित्र जगह है, यहाँ पर कथाएं हो चुकी है। और इनमें भी समय जो चल रहा है वो कार्तिक महीना, कार्तिक महीने का समय है। एक महीना जो है कार्तिक महीना है, और इनमें भी साक्षात गौर निताय का अभिषेक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मासा नाम कार्तिक मासो। भगवान कहते सभी महीनों में, जितने 12 महीना है, 12 महीनों में एक जो कार्तिक महीना है भगवान को बहुत ही प्रिय है। भक्तों, इस कार्तिक महीने में भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, नाना प्रकार की लीलाएं। इसी कार्तिक महीने में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। इसी कार्तिक महीने में भगवान ने रासलीलाएं की। इसी कार्तिक महीने में श्रील प्रभुपाद जी भगवान के धाम चले गए। इसी कार्तिक महीने में भगवान को उखल से बांधा था। उखल से है ना, आप लोग सब जानते हैं ना, भगवान को उखल, पेट को भगवान को मैया जी ने पेट को रस्से से एक उखल से बांध दिया। बच्चों को अच्छा लगता है जब उखल से बंधा है, उनको लगता है मम्मी मुझे भी बांध के रखती है डांटती है, कमरे में बंद कर देती है। देखो लाला को भी बांधा है, यशोदा मैया उनको भी डांटती थी, है ना, मैया जी भी वो भगवान को भी डांटती, देखो मुझे भी मेरी मम्मी डांटती है, यहाँ पे लाला को भी डांटती थी, उसको मैया ने बांध के रख दिया। बच्चों को देख के अच्छा लगता है, हालांकि हमें भी अच्छा लगता है। ये अद्भुत कथा है भगवान की, ये जो गोकुल की कथा है भक्तों, हमें मन को ये बहुत ही आनंद देने वाली है। भगवान की खास करके ये जो बाल लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ लीला है, श्रेष्ठ लीला है। श्रील रूप गोस्वामी पाद यहाँ तक कहते हैं कि गोकुलम गोलोक वैभवम, ये जो गोकुल है इस वृंदावन में, ये जो ब्रजवासी कोष में जो गोकुल है वो गोलोक का वैभव है। ये गोलोक वृंदावन में आकाश में जो भगवान का धाम है, वहां पर भगवान कभी असुरों का वध नहीं करते हैं। वहां राक्षस कहाँ होगा भगवान के धाम में, कहाँ होगा? आप जरा विचार कीजिए। यहाँ पे तो राक्षस आ जाता है, और देखो वृंदावन में भगवान ने कितने कितने राक्षसों को मारा। हम जब वृंदावन में जाते हैं तो नाना प्रकार की लीला स्थलों को हम लोग देख सकते हैं। भगवान ने राक्षस को मारा, इसको मारा, इसको मारा, नाना प्रकार के स्थानों को देख सकते हैं। कोई गधे के रूप में, कोई बैल के रूप में, कोई घोड़े के रूप में, कोई स्त्री के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप, नाना प्रकार के असुर नाना प्रकार के रूप लेकर कृष्ण को मारने के लिए आते थे। लेकिन आप विचार करें, यहाँ पर है, लेकिन ऊपर गोलोक वृंद भगवान के धाम में कोई असुर मारने आते हैं, वहाँ पे कौन असुर होगा? सब भक्तों के बीच में भगवान है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं गोलोक गोकुल गोलोक वैभवम, गोलोक गोकुलम वैभवम। गोलोक जो है गोकुल का वैभव है, मतलब एक गोकुल जो है गोलोक से श्रेष्ठ है। हमारे भारत की भूमि में जो वृंदावन है ना, वो गोलोक वृंदावन से श्रेष्ठ है। आकाश मार्ग में जो भगवान का धाम है, वो धाम से ये जो वृंदावन है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान असुरों को नहीं मारते, यहाँ पे असुरों को मारते हैं। दूसरी लीला है कि भगवान जो है वहाँ पे जन्म की लीला नहीं करते, यहाँ पे भगवान जन्म की लीलाएं करते हैं,
है ना। भगवान जन्म लेते हैं, जन्म की लीलाएं होती है यहाँ पे मथुरा में। मथुरा में भगवान का जन्म होता है, जन्म लीला भगवान यहाँ पे करते हैं। और तीसरा है कि भगवान यहाँ पर असुरों का वध करते हैं। पहला भगवान असुरों का वध, दूसरा यहाँ पे भगवान जन्म लीला करते हैं, और तीसरा जो है कि भगवान यहाँ पर बाल्य लीलाएं करते हैं। गोलोक में भगवान बाल्य लीलाएं क्या कहाँ करेंगे? यहाँ तो भगवान बचपन के रूप में रहते हैं। सब लोग यहाँ पर इस भौतिक जगत में सब लोग गोपाल जी का, लड्डू गोपाल का सब लोग भोग लगाते घर में, अपने घर पे रख के लड्डू गोपाल जी को। भगवान यहाँ पे बाल्य लीलाएं करते हैं, खास करके गोकुल में जाते हैं। भगवान सब पहले कहते हैं प्रभु जी हमें वृंदावन में जाना है, गोकुल में जाना है। भगवान ने मक्खन चोर की लाए कैसे कि कहाँ पे कि कहाँ मटकियाँ फोड़ते हैं दिखाओ। यात्रा में जाते हैं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने यहाँ मटकी फोड़ी थी, अरे यहाँ फोड़ी थी, यहाँ फोड़ी थी। सबको मटकी फोड़ अच्छा लगता है, इसीलिए आज भी हम जन्माष्टमी उत्सव पर मटकी फोड़ते हैं। पूरी दुनिया भर में आप देखते होंगे मटकिया को फोड़ा जाता है, लेकिन मूल मटकी फोड़ने वाला कौन है? लाला हमारा कान्हा, वो मटकी फोड़ता था। और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, कान्हा के पद चिन्हों पर। बहुत सुंदर कथा है जो आज कार्तिक महीने से संबंधित ये कथाएं हैं कि लाला बिल्कुल छोटा था और उनका स्वभाव था दही माखन की चोरी करना, मटकियाँ फोड़ना। वो भगवान का नित्य कर्म था, नित्य कर्म था। हमारा नित्य कर्म है कि गूगल और यूट्यूब में जाकर बैठना। गूगल और यूट्यूब में जाए बिना हमारा चलता नहीं है। अगर एक दिन नेट चला जाए, नेट, तो जीना हराम हो जाएगा। नेट और रोटी नहीं, घर में चावल दाल नहीं होगा, कल लाओ चलेगा, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का सब्जियां भी खा लेंगे या थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन नेट जानी नहीं चाहिए। हम भी यहाँ आते पूछते बोला नेट है ना, क्या नेटवर्क बरोबर पकड़ रहा है ना? तो ये बात है, नेटवर्क के बिना कोई कहाँ जाना नहीं चाहता है। गूगल और यूट्यूब तो देखे बिना हमें नहीं चलता है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा बच्चा भी होगा, अरे गूगल चाहिए, यूट्यूब चाहिए, ये वो, छोटा छोटा बोलना नहीं सीखा है, अब मोबाइल पकड़ के मुस्कुराने लग जाता है। लो, मम्मी पापा के सामने मुस्कुराता नहीं है, लेकिन मोबाइल को देख के मुस्कुराता है। ये कौन सा प्रशिक्षण है? एक कलयुग तो देखो, मम्मी पापा के सामने मुस्कुराता नहीं है, मोबाइल को देख के मुस्कुराने लग जाता है। क्या समय आ गया है, बोलना नहीं सीखा है वो। विचार करो ये कलयुग कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ कहाँ नरक में लेके जाएगा हमें, ये विचार करो। कहाँ कौन सा समय चल रहा है ये। तो भगवान का एक नित्य कर्म था। भगवान जो थे माखन की चोरी करते थे, और गोपिया जो थी वो यशोदा मैया के पास आती थी और नाना प्रकार की उल्हाना देती थी। गोपी आकर कहती थी लाला मैया को, मैया जी आपका जो लाला है ना, आपका जो लाला है ना वो बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है, हमारे घर पर आकर दही मटकियों को फोड़ के चला जाता है। मैया जी आपका लाला से हम बहुत ही परेशान हैं। मैया जी कहते हैं अरे मेरा लाला से परेशान, अपने घर को बंद रखो ना, क्यों खुला रखती हो आप, हमको क्यों कहने आती हो? हमारा लाला आपके घर पे आता है, आपका घर को, अरे मैया जी क्या करे, वो जब हमारे घर पे आता है ना, तो जब भी वो आता है तो पहले क्या करता है, बछड़ा को छोड़ देता है, और जब हम बछड़ा पकड़ने भागती है हमारे घरों में घुस जाता है। मैया जी आपके लाला से बहुत परेशान है, आपके लाला से बहुत परेशान है। मैया जी कहते क्या करता क्या है घर पे आके, क्या करता है, क्या करता है? अरे मैया जी दही की मटकियाँ फोड़ता है, ये लगता है छोटा, बड़ी बड़ी मटकियाँ फोड़ डालता है। मैया जी कहते हैं कि मटकियाँ फोड़ता है, मटकियाँ को ऊपर बांध के रखो ना, नीचे क्यों रखती हो आप? अरे मैया जी ऊपर बांध के रखते हैं तो भी वो एक ग्वाल बाल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, और डंडा मार के मटका को फोड़ के ही रहता है। मैया जी कुछ भी करो, आपका लाला से हम बहुत परेशान है। मैया जी हम क्या करें, आपका लाला से बहुत परेशान है। मैया जी कहते छुपा के रखो ना घर में,
छुपा के रखना चाहिए। अगर आपके घर पे मेरा लाला आता है चोरी करने के लिए, आप घर पे छुपा के रखो ना, आप उसको दही मक्खन जो भी घर पे छुपा के रखो। हमारे लाला की क्या गलती है? अगर चोर हमारे घर पे आता है, गलती हमारी भी होती है ना, केवल चोर की गलती थोड़ी है। घर को लॉक रखो, अपना संपत्ति ठीक से रखो, घर पे कोई न कोई रहो। अगर घर पे कुछ हो जाता है तो हमारी भी गलती होती है। 15-15 दिन, महीना पर भाग जाते हैं पैसा छोड़ के, तो चोर तो आएगा, चोरी करेगा ही ना। बढ़िया सा लॉक लगाओ, बढ़िया सा कैमरा लगाओ, हमारी भी जिम्मेदारी होती है ना। और केवल गवर्नमेंट और चोर के ऊपर ही टूट पड़े, कह रहे चोरी हो गई, अपना भी ध्यान रखना है ना, हमारी भी गलतियाँ होती है। तो बोले मैया जी कहते हैं कि देखिए आप दही मक्खन जो छुपा के रख दो आप। तो गोपियाँ कह जा रहे हैं मैया जी क्या करें, अगर हम छुपा के रखती है और आपके लाला को अगर नहीं मिला, गलती से हमारा घर पे मक्खन दही नहीं मिला, हमारे छोटे छोटे बच्चे सोए रहते हैं, उनकी चुटिया खटिया पे बांध के चला जाता है और इतने भी शांत नहीं होता है। जहाँ पवित्र जगह जो पूजा करने का स्थान है वहाँ पर पेशाब करके चला जाता है। मैया जी आपके लाला से बहुत परेशान है, क्या करें, बहुत परेशान। मैया जी विचार करती है कि लाला की गलती है कि गोपियों की गलती है ना। जब कोई बच्चे की कंप्लेन करते हैं तो माँ को क्या लगता है, मेरे बच्चे की कंप्लेन है, मेरा बच्चा की गलती है कि ये सामने वाले की गलती। माँ को तो अपने बच्चे की गलती लगती नहीं है। जब गोपियाँ खड़ी खड़ी एक के बाद बोलती जा रही है और भगवान कृष्ण बिल्कुल छोटे बालक के रूप में होते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं और मैया का आंचल, मैया का ये साड़ी लेकर छुपे हुए रहते हैं और छुप छुप के देखते रहते हैं कि गोपियाँ क्या बोलती है। और जब मैया एक के बाद सारी लीलाओं को सुनती है भगवान की, लेकिन सुनने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं देती है ना। माँ तो बच्चे का पक्ष लेगी, तो कोई रिएक्शन नहीं देती है गोपियों के प्रति, और गोपियों को बेचारी निराश हो जाती है कि ओहो इतने सारी गोपियाँ मिलकर हम लाला की कंप्लेन कर रहे हैं, मैया जी सुनती जा रही कुछ बोल ही नहीं रही है। तो तुरंत ही लाला समझ जाता है कि मैया तो आखिर मेरी है ना, और तुरंत थोड़ा सा साड़ी को हटा के उंगली निकाल कर कहता है कि देखो मेरी मैया है ना, आपको कोई फायदा हुआ कंप्लेन करके, है ना। बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं तो अरे एक दूसरे को है ना, एक दूसरे को इकट्ठे कर देते हैं, बोला अभी तक ऐसा। तो मेरी मैया है ना, आखिर मेरी माँ है ना। लेकिन इस बात को यशोदा मैया बहुत ही गंभीरता से लेती है, और गंभीरता से लेते हुए मैया जी दूसरे दिन स्वयं खुद पद्मगंधा गाय का दूध मंगाती है, और पद्मगंधा गाय का दूध मंगा के स्वयं दही बनाती है। दही बना के उसका मंथन करने लग जाती है। यशोदा मैया जो थी वो स्वयं मंथन करती है, और लाला जो था बिस्तर में सोया रहता है, और जब वो उठता है और उठने के बाद बच्चा उठता है तो देखता है कि माँ मेरे साथ है कि नहीं। वो बिस्तर में देखती है कि माँ है कि नहीं, ऐसा वो देखता है। लेकिन आज मैया मेरे साथ नहीं है, तो वहाँ करके वो थोड़ा बड़े भी हो गया था, खटिया से नीचे उतरता है और थोड़ा हल्के से चलते जो मैया मंथन कर रही थी दही का, वहाँ जाकर मंथनी को पकड़ लेता है। मैया जहाँ पर मंथन कर रही थी उसी मंथनी को पकड़ लेता है। जब मंथनी को पकड़ लेता है तो मैया समझ जाती हो लाला तो बहुत बड़ा हो चुका है। मैया जी को लगता है हो लाला बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि लाला कितना समझदार है ना, लाला कितना समझदार है, वो देखना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो जो मंथनी जो था वो मंथनी रोक दिया और खड़ी हो गई, देखने के लिए वो खड़ी हो गई। जैसे वो खड़ी हो गई थी तो उसी समय पर श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, गौर निताय की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे
श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। मैया विचार करती है कि लाला कितना समझदार हो गया है, कितना बुद्धिमान हो गया है। और देखने के लिए मैया जी ने अपनी मंथनी बंद कर दी और खड़ी होती देखती है। लाला मैया जी के पैरों से चढ़ते चढ़ते कमर से होते हुए, पैरों से कमर से होते हुए लाला जो था वो भगवान मैया के आंचल के पास जाकर आंचलों मुंह में डाल के दूध पीने के लिए लग गए। मैया को बड़ा ही प्रसन्नता हुई कि लाला अभी दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, बहुत ही समझदार होता जा रहा है। लेकिन जब लाला दूध पी रहा था तो मैया ने पद्मगंधा गाय का जो दूध मंगाया था, तो बाजू में तपेली पे ओट पर वो दूध जो था वो गर्म हो रहा था। जब दूध वो गर्म हो रहा था तो उसी समय पर गर्म होते 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 चूल्हा से वो दूध क्या हो रहा था, गिर रहा था। जब वो दूध गिर रहा था तो उसी समय पर मैया जी को लगा रहे दूध गिर रहा है, तो मैया जी लाला को जमीन पे रखा और दूध को बचाने के लिए भागे। तो करके लाला को रखा जमीन पे, दूध को बचाने के लिए भागे। लाला विचार करते हैं मैं गोलोक वृंदावन से यहाँ पर लीला करने के लिए आया हूँ, तो मैया जी थोड़ा सा दूध बचाने के लिए मुझे, मैं दूध पी रहा था, मुझे जमीन पे पटक के भाग रही है। लाला विचार करता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है लाला को। गुस्सा में आकर तुरंत ही है ना वो गुस्सा करते, मसाला पीसने का पत्थर होता है, पत्थर को उठा लेता है। और मैया देखा, मैया तो चली गई दूध को बचाने के लिए, चूल्हे पे गर्म हो रहा था। तो लाला ने पत्थर उठाया मसाला पीसने का, बड़ा सा मटका था, कितना बड़ा सा मटका और बड़ा सा पत्थर था, उठा के मटके ऊपर डुम मत करके मारा। और जैसे मारा पूरा बड़ा सा मटका ढुम करके फूटा और फूट के सारा जो दही मक्खन इत्यादि जो था वो सब जमीन पर गिर गया। मक्खन भी थोड़ा बना हुआ था, दही भी था, और फोड़ तो दिया मटका। फिर गीता का वक्ता डर गए, ओ हो मैया अगर देख लेगी तो क्या होगा। मैया को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने इस मटका को फोड़ा है तो क्या होगा। लाला ने तुरंत ही भागा छुपने के लिए, और इसी कमरे में से छुपके से चलते 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 बाजू के कमरे में जाकर उखल को उल्टा किया और उखल के ऊपर जाकर लाला बैठ गया। जब उखल के ऊपर बैठा था तो उसी समय पर मक्खन बंदर आ गए, बंदर को खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे। लेकिन यशोदा मैया जब दूध को बचा के जब आई, देखा ओ हो देखिए आज मेरे घर का ही मटका लाला ने फोड़ दिया। मैया जी विचार करती है कि गोपिया बिल्कुल सही कहती थी कि आप अपने लाला को संभालिए संभालिए। देखिए आज मेरे घर का ही मटका फोड़ दिया, आज मैं लाला को दंड दे के रहूँगी। मैया जी ने विचार किया कि लड़का बहुत छोटा हो गया है और उसकी जो हरकतें बिगड़ती जा रही है। आज उसने हमारा घर का मटका फोड़ा, बाहर के घरों का मटका फोड़ता है, गोपियों के घरों के फोड़ता है। आगे चल के यही लाला थोड़ा और बड़ा होगा तो किसी के घर की संपत्ति लेकर आ जाएगा, संपत्ति लाएगा। और बड़ा हो जाएगा तो किसी की लड़की को उठा कर लेकर आ जाएगा। ये चोरी करने की आदतें, मटका फोड़ने की आदतें कब तक अच्छी है। छोटा बच्चा होता है, माँ बाप के सामने झूठ बोलता है, माँ बाप को लगता है अच्छा लगता है। छोटा होता है, कुछ दो ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं देता है तो माँ बाप को अच्छा लगता है, अरे देखो बच्चा कितना समझदार है। लेकिन बड़ा होकर माँ बाप मांगेगा कि मुझे दो और नहीं देता है तो माँ बाप को लगता है कि अरे तो बड़ा हो गया, अभी भी हमको नहीं समझ पा रहा है कि हम उसके माता पिता हैं। माँ बाप दुखी हो जाते हैं, खास करके माँ जो होती है वो दुखी हो जाती है। माँ दुखी हो जाती है। यशोदा मैया बहुत ही दुखी हो गई कि इस लाला ने आज हमारा घर का मटका खोड़ा, बाहर के घरों का मटका है, चोरी करना है, कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। लाला को दंड देना होगा, इस बच्चे को दंड देना होगा। जब तक दंड नहीं देगा ये सुधरेगा नहीं। उन्होंने तुरंत ही घर में बड़ी सी छड़ी थी और छड़ी निकाला और छड़ी निकाल के तुरंत ही लाला को ढूंढने के लिए निकली। और जैसे लाला ने देखा कि वो हो मैया हाथ में छड़ी लेकर आते हैं तो तुरंत ही लाला जो था
उखल के ऊपर बैठा था, वहाँ से जंप लगाया और जंप लगा के लाला जो था वो भागने लग गया। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्याम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रचमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामि ईश्वरम, नमामि मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर ये स्तोत्र लिखा है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सच्चिद और आनंदमय भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। लसत कुंडलम, उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान के जो कुंडल जो थे गोकुल की गलियों में बहुत ही सुंदर लग रहा था। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। यशोदा भी उखल लाभधवमानम, यशोदा के भय से उखल से जंप लगा के, यशोदा भी उलुक लाभधव मानम, उखल से जंप लगाते हुए भगवान दौड़ते हुए आगे जा रहा है। और इससे भी कृष्ण से भी तेजी से दौड़ते हुए मैया यशोदा ने अंततः लाला को पकड़ लिया है। वही भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रुदन्तमुहुनेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिपदम्। मुह श्वास कंप, भगवान का जो मुंह जो था, मैया ने जैसे उनको पकड़ लिया, भगवान बहुत डर गए। डर के कारण सिसकियां लेने लग गए, सांस उनका तेजी से लेने लग गए। बच्चा जैसे डर जाता है, रोता है, सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, सांस ले रहा है। और जैसे तेजी से डहाका भर रहा है, आंखों में आंखों को मसलते जा रहा है, गले की माला ऊपर नीचे हो रही है, और डहाका भरते हुए सांस तेजी से ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। मैया ने उसको अपने गोद में पकड़ा हुआ है और लाला सिसकारा मारता हुआ, मुँह श्वास कंपत रेखांक कंठ स्थित गेव दामोदर भक्ति माता। गले की कंठ में पहने हुए, गले में जो माला पहनी हुई थी, 3 रेखाओं की माला भी कंपन प्राप्त कर रही है। वही भगवान दामोदर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अंततः लाला को पकड़ के अपने घर पर लेकर आई मैया। मैया ने विचार किया कि लाला को कुछ दंड देना होगा। तुरंत वहाँ पर उखल था, उखल से मैया जी ने लाला को बांधा वहाँ पर। तो जब वो उखल से बांधने का प्रयास कर, जब वो बांधने जा रही थी, अपने घर की सारी रस्सी लेकर आई, दूसरे घर की रस्सी लेकर आई, तीसरे घर की रस्सी लेकर आई, सारे घरों की रस्सी आई। गोकुल की जितनी रस्सियाँ थी सभी रस्सियाँ को मंगाया, लेकिन 2 उंगल रस्सी क्या हो रहा था, छोटी पड़ रही थी। केवल 2 उंगल। अरे 2 उंगल रस्सी, सारी रस्सी बांधो, लास्ट में 2 उंगल छोटी पड़ रही है। कुछ गोपियाँ खड़ी थी, मैया कहती, गोपियों को डांटते हुए, बोले गोपियों को डांटते हुए मैया कहती है, क्या देख रही हो? गोपियाँ ही हाँ करके हंस रही थी। सब मैया जी डांटती, बोले जाओ आप,
अपने घर की रस्सी लेकर आ जाओ। क्या देख रही हो आप, जाओ रस्सी लेकर आ जाओ। गोपियाँ भी तुरंत ही डर के मारे, मैया, क्योंकि मैया महारानी थी, डर के मारे गई गोपियाँ अपने घर की जितनी रस्सी थी सारी रस्सी एक एक करके ला रहे लाला से छुप छुप के। कैसे? अगर लाला देख लेगा तो कल हमारे घर पे लाला आएगा नहीं, है ना, हमसे हमारी मटकियाँ फोड़ेगा नहीं। तो लाला से छुप छुप के एक के बाद गोपियाँ रस्सी दे रही थी। मैया जी बांधती जा रही थी, बंधन नहीं हो रहा था। एक गोपी हल्के से बोली, मैया जी आपके लाला के नसीब में बंधन नहीं लिखो है, क्यों बांध रही हो? मैया जी कहते, अरे क्या बोल रही हो तुम? मेरे कोख से लाला ने जन्म लिया, मेरा लाला, मैं उसको नहीं बांधूंगी, तुम बांधोगी क्या? तुम बांधोगी, मैं उसको बांध के रखूंगी। जाओ लेके आओ, अपने घर की सारी रस्सियाँ लेकर आओ। मैंने सारी गोपियाँ खड़ी थी, सबको डांटा। वापस गोपियाँ गई, गोकुल की सारी रस्सियाँ लेकर आए, लेकिन 2 उंगल रस्सियाँ छोटी पड़ रही थी। मैया जी विचार करती है कि लाला आखिर क्या है, क्या इसमें क्या है? 2 उंगल, इतनी सारी रस्सी ऊपर रस्सी बांधी, 2 उंगल छोटी पड़ रही है। भगवान ने विचार किया, मैया के चेहरे पे पसीना ऊपर पसीना आ रहा है, बाल छूट रहा है, साड़ी ढीली हो गई है और मैया जी थकी हुई हो गई, रस्सी बांधते बांधते। भगवान ने विचार किया कि अभी मुझे मैया जी का परिश्रम देकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान तुरंत ही बंधन में आ गए। श्री प्रभुपाद की, श्री भगवान श्री कृष्ण की, लड्डू गोपाल की, गोपाल जी की। भगवान तो बंधन में आ गए और जैसे बांधा सारी गोपियों का चेहरा मुस्कुराने लग गया। मैया जी मुस्कुराने लगे, देखो मैंने मेरे लाला को बांध दिया। यहाँ पे बहुत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत होता है भक्तों। इस सिद्धांत को हमें समझना होता है। सिद्धांत ये है कि जब भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम प्रयास करते हैं, एक के बाद प्रयास करते जा रहे हैं, तो भगवान पहले देखते हैं, है ना। हम जपा करते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं, तो भगवान देखते हैं थोड़ा और प्रयास करने दो। फिर हम और शक्ति लगाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, फिर भी भगवान देखते हैं कि और प्रयास करने दो। और भगवान की सेवा के लिए, खास करके माला जपने के लिए, सुबह से शाम तक हमारे पास टाइम नहीं है। ऑफिस में जाना होता है, घर की जिम्मेदारी है, पैसा ये वो, बच्चों को रखना होता है, कुकिंग करना होता है, नाना प्रकार की जिम्मेदारी, टाइम ही नहीं है। और इसी समय पर हम माला निकालते हैं। वो माला निकाल के जब हम एक माला करते हैं, वो परिश्रम देकर भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान विचार करते हैं कि देखिए मेरे भक्त, देखिए समय नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति में देखिए माला निकाल के मेरे नाम का जप कर रहे, मुझे बुला रहे हैं सहायता के लिए। भगवान बड़े प्रसन्न। कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि माला दो, जैसी दी वैसे टांग के रखी। जब हम 2-4 महीने बाद उनके घर पे जाते हैं तो तभी निकालते हैं बाहर, धूल लगी रहती है। वैसी की वैसी माला पड़ी है, वैसी कोई गीता वैसी की वैसी तोड़ी नहीं कभी भी। वैसे कोई लोग ऐसा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे गंभीर हैं, वो सोचते चाहे घर की परिस्थिति कैसे भी हो, कृष्ण को मैं नहीं भूलूंगा। राखे कृष्ण मारे कौन? कृष्ण अगर बचाना चाहते, किसकी हिम्मत है हमें मारने की? और कृष्ण अगर हमें मारना चाहता है, किसकी हिम्मत है हमें बचाने की? हरे कृष्णा हरे सबको बोलना है ना, सबको बोलना है। और माताओं के पास तो घी का डब्बा होता है, बच्चों के पास तो होता नहीं, उनकी आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। बच्चे और प्रभु लोग तो बेचारा जितना लगा के दिया इतना ही खाएंगे, है ना। लेकिन माँ चाहे तो कितना भी खा सकती है, इसलिए जोर से बोलना है, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे 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 राम। हाथ को ऊपर करके, हाथ ऐसा होना चाहिए पूरा द्रौपदी की तरह समर्पण, है ना। सब कुछ तुम्हारा प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। आप लोग के अंदर प्रश्न उठेगा कि ये प्रभु जी बार बार ऐसा क्यों करा रहे हैं? हमने कभी किया ही नहीं ऐसा, कभी नहीं किया हमने ऐसा करना, मतलब अरे एक बार बार ऐसा क्यों करा रहे हैं, ऐसा प्रश्न भी उठेगा ना। लोग ऐसा विचार आता है कि बार बार ऐसा क्यों करा रहे हैं, है ना। हमको तो ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता, केवल ऐसा होता है बस, ये अच्छा लगता है हमें बस। बाकी ये तो अरे बाप रे, तो उल्टा हो रहा है कुछ, है ना। तो ऐसा मतलब लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर वो अच्छा लगता है हमें, गूगल वगैरह अच्छा लगता है। बिल्कुल सत्य वस्तु की जगह पर मैं कथा कर रहा था। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और रथ यात्रा पूरी हो रही थी और अब हमारा प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन के बीच में एक वक्त ने मतलब प्रवचन से पहले उन्होंने हमें कुछ प्रश्न किया कि स्वामी जी आप रथ यात्रा में बार बार ऐसा क्यों कराया, ऐसा क्यों कराया। तो हम जब वो हमारे पास आके कह रहा था, हमने उसको देखा कि व्यक्ति कौन है ना। तो ऐसा लग रहा था देखने से बहुत गंदा था, नहाया नहीं था, मतलब कपड़े भी गंदे थे, बाल भी ऐसे थे और पूरे सब शूज भी ऐसा पहना था, ऐसा लग रहा था कि साफ ही नहीं था। मुझे लगा कि जेब काटने वाला आदमी होगा। हम भी डर गए पहले उसको देख के, लेकिन उसका प्रश्न ऐसा व्यक्ति का प्रश्न मैं आश्चर्य हुआ है, इतने सारे लोग प्रश्न यही पूछ रहा है। फिर बोला स्वामी जी, क्योंकि देखिए डर का मर्यादा है, वहाँ पे डर है। भक्तों को आपस में पूछने में डर लगता है, लेकिन कोई ऐसा, उनको क्या डर, कोई डर नहीं। बोले स्वामी जी बार बार आपने ऐसा क्यों कराया, बार बार ऐसा क्यों कराया। ये मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्या जवाब दूँ मैं। उनको जवाब ऐसा, अभी हम ऐसा बोलेंगे कि हम भगवान के प्रति समर्पण है, उनको समझ में आएगा नहीं। तो अभी मैं बोला इनकी स्वभाव के अनुसार हमें कहना होगा कि क्या हम करा रहे हैं। हमने कहा कि देखिए ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की है ना, उसमें 1.5 से 2 लाख रुपया का खर्चा हुआ। बोला है स्वामी जी, बोला हाँ 2 लाख रुपया हम खर्चा कर चुके हैं और डोनेशन आया केवल 50,000 रुपया। कितना? 50,000 रुपया। तो अब क्या करें, अभी आयोजन किया है तो सब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। 50,000 रुपया ही डोनेशन आया, किसी ने दान दियो भी हो नहीं अभी, तो क्या करें। फिर हमने विचार किया, व्यक्ति को हम क्या, बिल्कुल हम सत्य कहते हैं आपको हमने विचार किया कि पैसा कहाँ से इकट्ठा करें। तो हमने कहा कि 8-10 लोग को बोल दिया कि आप रथ यात्रा में घूमते रहो, बीच बीच में हाथ ऊपर कराएंगे, आप जेब काटते रहो और क्या। बोला हाँ स्वामी जी यही होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उसको बिल्कुल अच्छा लगा, जैसे मेरे जेब काटने की बात का बोला हाँ स्वामी जी वही होगा। मिला हाँ 1.5-2 लाख रुपया कौन दान देगा हमको इतना, बड़ी रथ यात्रा आयोजन किया ऐसा। लेकिन हाथ ऊपर करना भगवान के प्रति समर्पण का भाव है भक्तों। जैसे द्रौपदी देखिए भाव पे आकर भगवान को पुकारती है, हमारा सब कुछ आपका प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है हर वस्तु के मालिक आप है प्रभु, हर वस्तु के। कृष्ण अगर बचाना चाहते हैं कौन मारेगा, और कृष्ण मारना चाहता है किसकी हिम्मत है बचाने की। तो लाला विचार करते हैं कि मैया का जो परिश्रम था, परिश्रम देखकर लाला विचार करते हैं कि ओहो अभी मुझे बंधन में आना पड़ेगा। भक्तों अगर हम भी परिश्रम करें, हम आपसे वर्षों से कहते हैं, इसके पहले भागवत कथा हुई थी, कुंज बिहारी माता जी यहाँ रहती थी, तभी भी हमने कहा था, तभी भी यहाँ पर आए थे हमारे भक्त आए थे, गुड़ाकेश प्रभु जी ने 7 दिन कथा की, हमें यहाँ आते थे, तभी भी कहा था नाम जपो नाम जपो। अगर हम भगवान का नाम का जप बड़े गंभीरता पूर्वक करते हैं तो स्वाभाविक है भगवान की कृपा आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे। मैया ने अंततः लाला को बांध ही दिया, लाला बंधन में आ गया। और जब कोई लड़के को बांध देती है माँ, तो सारे लड़के आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, अरे मेरे दोस्त को बांध दिया, अरे उसको बांध दिया, अरे इसको बांध दिया। लाला के सारे सखाए जितने भी ग्वालवाल थे, सभी ग्वालवाल एक के बाद वहाँ पर आए, अरे लाला को बांधा, लाला को बांधा। गोकुल में गोपियों के पास बड़े गोप छोटे गोप सभी पूरे गोकुल में बात फैल गई, लाला को बांध दिया, लाला को बांध दिया। ओ सारे गोपियाँ तो बहुत खुश हो गई, ओ लाला को बांधा, लाला को बांधा। एक गोप ने एक बलराम जी को जाकर कहा कि बलराम जी लाला को बांध दिया। बलराम जी बड़े गुस्से में आ गए, अरे मेरे भाई को बांधा, किसने बांधा? बोला पता नहीं किसने बांधा, लेकिन लाला को रस्सी से बांधो है।
बलराम जी खेल रहा था, बोले हाँ लाला को बांध, बोला हाँ लाला को रस्सी से बांधो है। अरे कौन बांध सकता है जब तक दाऊ है? लाला चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। जब तक दाऊ है आपको कोई नहीं बांध सकता है। भागे वो खेल छोड़कर, सारे सखा बड़े आवेश में होकर लाला को बांधा, हम छोड़ा के रहेंगे। भागते 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 आए और अपने घर में आए जहाँ लाला को बांधा था। और जे भागते भागते थके हुए, किसने बांधा किसने बांधा? मैया ने छड़ी दिखाई, सारे ग्वाल बाल बलराम जी के साथ भाग गए। मैया की एक छड़ी देखिए, भक्त की छड़ी, प्रेम बस भक्ति सी छड़ी से सारे जितने भी आए थे सारे ग्वाल बाल बलराम जी के साथ सब भागे। वापिस आए, है ना? किसने बांधा किसने बांधा, क्यों बांधा क्यों बांधा? मैया कहती किसने बांधा क्यों बांधा? मुझे पूछोगी? मेरा लाला है, मैंने बांधा। अरे क्यों बांधा क्यों बांधा? आप जानती हो उसको? पागल कहेगा, मेरा लाला है, मैं नहीं जानूंगी, तुम जानोगे क्या? समझ में नहीं आता, मेरा लड़का मैं जानता हूं, मैं जानती हूं उसको। बलराम जी कहते आप नहीं जानते उसको। यशोदा मैं कहते मुझे अभी मेरे सामने बोलने सीख गया, अभी मैं नहीं जानती। बोला हाँ मैया तुम नहीं जानते, कौन है? बोले राम के रूप में आया था तो यही महाशय था। तो वो ऐसे ऐसा करके रो रहा है। लो राम जी तो रो रहे हैं यहाँ पे। बोले राम के रूप में यही आया था। मैया जी उसको देख रहा, बोले ये राम के रूप में आया था। देखो मक्खन की चोरी करता है, मटकियाँ फोड़ता है, और ये राम जी था पूर्व जन्म में, है ना? ये राम था, त्रेता में यही राम था। बोले इसे ठूका भर रहा है जोर जोर से। बलराम जी को देखे, बलराम जी छुड़ाए, बोले हाँ यही राम है। बोले राम ही नहीं, परशुराम भी यही था। बोले परशुराम भी? अरे परशुराम छोड़ो, जितने भी अवतार हुए सारे अवतारों के उद्गम यही है। देवता, स्वर्ग में देवता, सारे चर अचर जीव प्राणी, संसार में हर वस्तु है, सबकी उत्पत्ति और सारे अवतारों के यही अवतारी है। तो तुरंत ही मैया जी को बड़ा गुस्सा आया, हाथ में छड़ी उठाया, छड़ी उठा के बलराम जी के पीछे भागते हुए जोर से चिल्लाती है, सारे अवतार मेरे घर में ही आए और कोई घर नहीं मिला क्या? मेरा घर ही मिला और कोई घर नहीं मिला क्या? इस प्रकार की है जो भगवान की लीला जो है, दामोदर लीला, जो भगवान ने इसी महीने में की थी। और तो इसी महीने में भगवान ने दामोदर लीला की थी। और अभी हम, है ना, भगवान का ये 56 भोग ऑफरिंग हो रहा है। ऑफरिंग के बाद हम इसी दामोदर को, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलधिमग्नम। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, है ना? हे दामोदर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। ये भाव से भगवान को प्रसन्न करना है हमें, दीप दिखाते हुए, है ना? हे प्रभु इस भवसागर में हम डूबे जा रहे हैं, नाना प्रकार का कष्ट है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो प्रभु, इस भव सागर से हमें बाहर निकालो, आपकी हमें भक्ति दो प्रभु, आपकी हमें भक्ति दो। ये जगत ऐसा है, कष्ट के ऊपर कष्ट आता है, पदम पदम विपदम, एक एक पैर पर, एक एक कदम पर यहाँ पर कष्ट है। एक एक कदम पर एक कष्ट को भगाओगे दूसरा कष्ट आएगा, एक को भगाओगे दूसरा आएगा, दूसरे को भगाओगे तीसरा आएगा। कष्ट आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा सोचो मत। पदम पदम विपदम, एक एक कदम पर कष्ट है। यहाँ पे सुख नहीं है। हम मानते हैं कि हम सुखी हो जाए। अरे सुख किसने देखा है यहाँ पर? क्या हमारे पिताजी, उनके पिताजी ने सुख देखा है क्या? सुख किसने देखा? यहाँ सुखी कोई हो सकता है क्या? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवं मृत्युम ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य ध्रुवं मृत्युम, जिसका जन्म हुआ है इसकी मृत्यु निश्चित है। मरने वाला व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? भाई यहाँ सुख किसको मिला? आप पहला गिनती करके देखिए, हिसाब करके देखिए, सुख क्या मार्केट में मिलता है क्या पैसों से? सुख ऐसा अमिताभ बच्चन को मिला? पूछिए, बड़े बड़े कलाकार, फिल्मी कलाकार को पूछिए, और भी ए से लेकर जेड तक सबको पूछिए कि आपको सुख मिला? अंत में
अंत में आप पूछिए सुख मिला, अंत में आप अकबर की बात समझते हैं, हाथ कहा कि दोनों हाथ मेरा बाहर रखना कि मैं भी खाली हाथ से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर सुखी कोई नहीं है, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी है ना, दुखी सब दुखी है। किसी का मन दुख देख रहा है, किसी का शरीर देख रहा है, किसी को एक जीव दूसरा जीव को दुख दे रहा है। ये दुखों का घर है ये, यहाँ सुख नहीं हो सकता है। सुखी हो मृत्यु में जगत है, यहाँ सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं। सुख तो केवल भगवान के धाम में है। हरे कृष्णा हरे नमो देवदामोदरम् अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलधिमग्नम् कृपा दृष्टिविष्टाते दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृशा कृपा दृष्टिविष्टाति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृशा नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरतीर्थधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। नमामीश्वरम, है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। नाना प्रकार से कष्टों में इस संसार में फंसा हुआ हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। इस संसार जो है दुखमय है। बहुत सुंदर कथा है। यहाँ पर किसी ने सुख देखा नहीं है। सुख कैसा है मालूम है? सुख थोड़ा सुख है। आपने वड़ा पाव तो बहुत खाया होगा, सैंडविच बहुत खाया होगा। सैंडविच के बीच में क्या होता है? आलू, है ना? आलू। और बच्चे क्या खाना चाहते हैं? आलू। ऊपर का नीचे का हमें नहीं चाहिए, केवल आलू दे दो। आलू अच्छा लगता है। लेकिन दो पैकिंग के बीच में सैंडविच है, तो दो दुखों के बीच में एक सुख है, थोड़ा सा सुख है। आलू की तरह थोड़ा आलू होता है ना? आलू ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू मम्मी ज़्यादा डालो, आलू तो थोड़ा सा आलू है ना, अच्छा लगता है। तो दो दुखों के बीच में थोड़ा सुख होता है, और थोड़ा सुख मिला, ओ हम लोग सुखी हो गए, हमें सुख मिल गया। लेकिन दुख इससे बड़ा इंतजार कर रहा है, इससे बड़ा दुख अभी भी गया, दूसरा इंतजार कर रहा है। थोड़ा सुख मिला, थोड़ा सा कहीं से पैसा आ गया, थोड़ा सा कुछ मिल गया, कहीं से कोई गाड़ी मिल गई, अच्छा नौकरी मिल गया, थोड़ा समय के लिए ओ सुख मिला। लेकिन दुख इससे बड़ा हमारे पास खड़ा है। वो कैसा दुख है? पहले के ज़माना में राजा लोग क्या करते थे, जब कोई चोर चोरी करता था तो दो राजा जो होते थे, दो मंत्रियाँ होते थे, दोनों का हाथ पकड़ते थे, है ना? दोनों का हाथ पकड़ते हुए तुरंत ही चोर का दो हाथ पकड़ते थे। हाथ पकड़ के दो नाव के बीच में उसको रखते थे, दो नाव के बीच में, और एक नाव में एक हाथ, दूसरे नाव में दूसरा हाथ, और सर को उनका क्या करते थे? दबाते थे। उसको जैसे पानी में डुबाते थे दो नाव के बीच में, जैसे दोनों हाथ पकड़ के जैसे उसको डुबाते थे, वो क्या करता था? वो पूरा वापिस उसको क्या करते थे? बाहर निकालते थे। और जैसे बाहर निकालते थे तुरंत ही उसको लगता था हाँ सुख मिला। वैसा सुख है हमारा।
वैसा क्षण भंगुर सुख है, थोड़ा समय के लिए सुख है, क्षण भंगुर सुख है। हमारे पास सुख नहीं है, क्षण भंगुर। कैसा सुख है? एक समय जंगल में एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, सिंह ने बड़ी गर्जना की। सिंह के डर के मारे वो सोचा मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, उनको लगा पेड़ के ऊपर आ जाएगा। छुपने के लिए वो भाग रहा था। एक कुआं आया, वो कुआं में उन्होंने जंप लगा के सिंह से बचने के लिए कुआं में गिरा। वो कुआं में गिरते डाली पकड़ लिया, नीचे देखा तो मगरमच्छ था। क्या था? मगरमच्छ। और क्या कर रहा था वो? मुंह खोल के था। मगरमच्छ मुंह खोल के ऐसे बैठा था। मगरमच्छ वो देख रहा, अरे बाप रे, नीचे गिर गया तो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जय। ओ बाप रे, हम तो गया यहाँ से, नीचे गया तो हरि बोल हो जाएगा, हरे कृष्ण हो जाएगा हमारा। मगर ऐसे मुंह खोल दिया, ओ आ जाओ महाप्रसाद, मेरा फीस्ट मिलने वाली है आज, फीस्ट। मगर इंतजार, मुंह खोला, आ जाओ। वो जंप लगा रहा है कि उसको पकड़ लूं, लेकिन बहुत ऊंचा था। ऊपर सिंह आया, महाप्रसाद, गुलाब का जामू, अरे वाह। ऊपर बाहर आए, खा जाओ। तो वही इंतजार करें, कब तक अंदर रहेगा? कभी न कभी तो बाहर आएगा, आज की तो कल भूखा प्यासा बाहर तो आएगा ही। और सिंह बैठा है मुंह करके, ऊपर देखता है तो सिंह, नीचे देखता है मगरमच्छ। और दो सर्प थे, सांप थे, चूहा थे, या दो ऐसे जानवर थे जो जिस डाली पे लटक रहा था, वो डाली को क्या कर रहा था? वो काट रहा था। अब देखिए, डाली के ऊपर चढ़ के जाएगा तो सिंह था, नीचे जाएगा तो मगर था, और डाली पे रहेगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? डाली को काटा जा रहा था। और उसी समय पर वो चारों तरफ दुख ही दुख महसूस कर रहा था। उसी समय पर एक पेड़ के ऊपर एक मधु लगा हुआ था, और मधु मक्खियां गणगुणाती हुई वहां आ रही थी। मध उसी के मुंह में गिर रहा था, और जैसे मध की एक बूंद गिरती थी, उसको लग रहा था वाह कितना अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो जो मध था, वो मध को देख के इतना खुश हो रहा था। वो मध को देख के बड़ा खुश हो रहा था। मध एक बूंद गिरा, बड़ा प्रसन्न हो जा रहा था। वाह कितना सुखी हुआ, अपने आप को क्या समझ रहा था? सुखी। तो चारों तरफ से हमारा मृत्यु इंतजार कर रहा है। काल ने चारों तरफ से घेर चुके हैं हमें। काल, बुढ़ापा हमारा दिन प्रतिदिन इंतजार कर रहा है। बीमारियां, नाना प्रकार का कष्ट हमें जगत में सता रहा है। और उसी समय पर हमें थोड़ा सा कुछ पैसा मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सुखी है, हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, हम अपने आप को सुखी मानते हैं। लेकिन भक्तों, इस जगत जो है दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पे नाना प्रकार का दुख है। एक दुख को भगाते हैं, दूसरा दुख आता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। 7 प्रकार का दुखों का आवरण है। कितना? 7 प्रकार का दुखों के आवरण में फंसे हुए हैं हम लोग। एक दुख भगाओ, दूसरा भगाओ, तीसरा भगाओ, चौथा इंतजार ही कर रहा है वो आपका। गिनती करते हैं, जन्म के समय दुख है, मृत्यु के समय में दुख है, बुढ़ापा के समय दुख है, बीमारी के समय दुख है। श्री राधा मदन मोहन भगवान की, गौर निताय की जय। जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। Hare